For the past 10 years, a very large number of people in this country have felt that Samvidhan khatre mein hai. This government on a daily basis is pursuing unconstitutional methods of restricting freedom of the press and freedom of speech. Its ill-conceived amendments to the IT rules to create fact-checking units was recently struck down by the Bombay High Court as being violative of Articles 14 and 19 of the Constitution. The latest UP police cases against fact-checker Mohammad Zubair, when the UP police is invoking de facto sedition against a fact-checker who is documenting hate speech. This is preposterous. I am one of the petitioners challenging the constitutionality of the sedition law, and the Supreme Court has very clearly stated that no coercive action will be taken on alleged sedition cases till the matter is decided. Yet the government doesn't stop. The Bharatiya Nyaya Samhita, which the ruling party brought in last year when most of the parliamentarians were suspended, they said we are dropping sedition, but you also replaced it with a far more draconian Section 152. There's also something else which we all need to think about. The BNS for the first time adds terrorism as a punishable offence and defines it as an act that intends to threaten the unity, integrity and security. So the crime of terrorism is no longer anchored in an actual act. It's anchored in an intent or a thought. This means that from now onwards, the parents of disappearing Kashmiris or disappearing Manipuris who are protesting peacefully in a park can be accused of being terrorists. What they do or do not do in that park while they assemble is besides the point. As long as a police officer is convinced that they have the intent to do something, they can be terrorists. This makes terrorism a thought crime. Madam Chairperson, this is closer to the letter and spirit of the dystopian reality in George Orwell's 1984 than it is to the Constitution of India. Let me turn to how the policy of 1,000 cuts has damaged our institutions. Institutions like the Enforcement Directorate and the CBI have turned into extortionist departments for the government. 14 political parties approached the Supreme Court against the coercive criminal actions of these two agencies. 95% of cases by these two agencies are against opposition politicians. Since 2014, 25 opposition leaders facing corruption have crossed over to the BJP. 23 of them have got reprieves. 3 cases are closed. 20 cases are stalled. For years, the CBI was used to put pressure on NDTV and its promoters via a bogus case. Now that the channel's been captured, it's been sanitized, CBI says that there was never any case to start with. Airports and large infrastructure have been captured by crony capitalists by similar misuse of the ED and the CBI. In a cooked-up case against me, the CBI is wasting precious time and resources looking for a scarf and lipstick that a friend gifted me. These actions have cost India the first ever human rights violation by the Inter-Parliamentary Union in Geneva, the global body governing all national legislatures. After the abrogation of Article 370, there has been a flagrant crackdown of the constitutional rights of the people of Kashmir. Free speech and movement have been hampered. Passports cancelled without any pending cases. Never heard of it. Manipur, an integral part of the Union of India, seems to have a complete breakdown of constitutional machinery. The failure of governance is stark. The Union government under Article 355 of the Constitution is obligated to assist states in the maintenance of law and order. In May 2024, in the Supreme Court, Solicitor General stood up and said the violence is subsiding. Yet, horrifying incidents are happening every day. I petitioned the Supreme Court in the Manipur violence case. Senior Advocate Indira Jaisingh appeared for me. An expert committee was set up. But then after 27 or more hearings, there is no relief, there is no justice yet. Time constraints don't allow a more in-depth analysis, but it is crystal clear that this political executive of the past 10 years has systematically eroded democracy. सभापति महोदय, यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी किसी चीज की तुलना हो तो तुलनात्मक होनी चाहिए। जब हमारी सरकार आई और गृह मंत्रालय का दौर आया तो उस जमाने में क्या अंतर था सिक्योरिटी में और आज क्या बड़ा अंतर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे प्रमुख दायित्व है। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा गृह मंत्रालय की बात मैं पूछना चाहता हूं। हमारी सरकार आने से पहले दिल्ली में धमाके नहीं होते थे क्या? मुंबई में नहीं होते थे? चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, कौन सा ऐसा शहर का जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलते बस में धमाके, लोकल ट्रेन में धमाके, और लिखा रहता था बस अड्डे पे धमाका, रेलवे स्टेशन पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। मगर इसके बावजूद आज वो केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सीमित हो गया है। इसके बावजूद इतना बदला हुआ नजारा नजर नहीं आता है। यह दर्शाता है
कि कितना पूर्वाग्रह की दृष्टि है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस सरकार, पिछली सरकार के शासनकाल में जांच के अंदर किस प्रकार का कार्य हुआ, मैं 2 चीजों का उदाहरण देना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस केस दुनिया के इतिहास का इकलौता केस होगा कि पहले वहां सरकार जांच कर रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक यू टर्न ले लिया और तथाकथित हिंदू आतंकवाद पे आ गए। किस आधार के ऊपर? आरोपी के रूप में असीमा आनंद जी का जेल में इंटरव्यू। मैं पूछना चाहता हूं, जेल में इंटरव्यू कैसे हुआ? बजाय इंटरव्यू लेने वाले पे कार्रवाई होने के, पुलिस के सामने दिया गया बयान एडमिसिबल नहीं होता है और इंटरव्यू के आधार के ऊपर चेंज कर दिया। जबकि डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी पत्नी फौजिया का अमेरिका में दिया इंटरव्यू है जिसमें सीधे सीधे उसने कहा कि यह पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, इशरत जहां केस। यह दुनिया के इतिहास में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में एक अद्भुत उदाहरण होगा कि पहले भारत की आईबी और सीबीआई दोनों कह रही थी कि इशरत जहां आतंकवादी है, फिर अचानक सीबीआई ने स्टैंड चेंज कर दिया और कहा वो आतंकवादी नहीं है। मगर सभापति महोदय, आईबी चीफ कहते रहे कि वो आतंकवादी है। यानी ऐसा विचित्र उदाहरण था कि एक ही सरकार की 2 एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ बोल रही थी। और जब हमारी सरकार आई और हलफनामा बदलने का आधार पूछा गया तो सभापति महोदय फाइल गायब थी। यह दर्शाता है कि सिक्योरिटी का किस प्रकार से मजाक उड़ाया गया। 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, यह इनकी सरकार मानती थी, मगर हमारे कई सम्मानित नेता उस तरफ बैठे जो कहते थे आरएसएस ने कराया। सिक्योरिटी का जिस प्रकार का मजाक इनकी सरकार में उड़ाया गया है, यह दर्शाता है कि वो सिक्योरिटी किस प्रकार की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग जो अपने जमाने में क्या कहते थे कि इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, ओसामा जी हैं, हाफिज साहब हैं। इस हालात के बाद क्या होना था? मैं पूछना चाहता हूं, ये डर के बोल रहे थे या प्रेम से बोल रहे थे? या आपकी मोहब्बत की दुकान के सरमाएदार थे या मोहब्बत की दुकान के खरीदार थे? और मैं सिर्फ अब 2 स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा उस सरकार की हालत के लिए। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने जयपुर में वक्तव्य दिया कि आरएसएस के कैंप्स में टेरर ट्रेनिंग की जाती है। और जब सुषमा स्वराज जी ने आके सदन में पूछा, गृह मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया। सोचिए, इस प्रकार का मजाक भारत की सुरक्षा के साथ कभी सुनाई नहीं पड़ता। और 14 जुलाई 2011 को कांग्रेस के एक चिर युवा नेता जो चिर क्रोधित और चिर आक्रोशित रहते हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, बट टेररिज्म इज समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप ऑल द टाइम। यानी हमेशा के लिए आतंकवाद को रोकना मुमकिन नहीं है। सभापति महोदय, जिस सरकार का चाल चलन ऐसा था, उसके हालात में रोकना मुमकिन नहीं था। पर आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी है तो मुमकिन है, वो हमने करके दिखाया। मैं दूसरा बताना चाहता हूं उदाहरण। एक दौर था जिस जमाने में 26/11 हमले के बाद से पहले 2007 में आंतरिक सुरक्षा के लिए नीति क्या थी? हवाना में जाके यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। 26/11 के हमले के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का उल्लेख आया और यह कहा गया टेरर के अटैक से टॉक्स प्रभावित नहीं होंगी। मगर सभापति महोदय, जो हमारी सरकार आई तो हमने कहा टेरर के साथ टॉक्स नहीं होंगी। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, हमने इस बात को बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। और इसीलिए पिछले 11 साल ऐसे जब कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, सभापति महोदय, क्योंकि जब से हमारे गृह मंत्री जी आए हैं, हालात में जानते क्या बदलाव आया है? उस जमाने में शांति के कबूतर उड़ा करते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं। और जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि अम्मा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे। और अब वो बदलाव ये देखने को मिला है। ये लोग तो वो हैं सभापति महोदय जिन्हें भारत इतना कमजोर चाहिए था, किसी संसद भवन की छत के ऊपर जो शेर बने हैं उसके लिए लोग गए थे कोर्ट में कि शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। यानी इन्हें शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, बिल्ली जैसे नहीं, भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। परंतु शायद ये भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गुरु गोविंद सिंह जी से भी प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से भी प्रेरणा लेते हैं। और उनकी तरफ से हमारी नीति के लिए कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और ये आपने देखा, ये बालाकोट में भी दिखा, ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा। तो तब हमारे विरोधी क्या कहते थे? आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, पेड़ गिरी थी कि बिल्डिंग गिरी थी। इस प्रकार के मजाकिया बात करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं